So good afternoon, student. Again, we discuss about the bladder cancer. So earlier we discussed about kidney cancer. So let's continue. Bladder cancer का एक diagrammatic representation लेते हैं. Suppose it is our bladder. Okay. Ureter. It is connected. These pipes are ureter, and it's connected to the kidney, where the fil- where the unfiltered water retention is occur. So here the bladder is there. These are the ureter. Suppose it's a bladder. It is a layer of bladder. So it is in a specific direction or its specific location where the cancer is arise. Here the cancer is arise where I colored the black portion of the ureter. Or the bladder. Okay, this is the whole body of the bladder. Okay, which is called bladder only. Bladder, epithelial lining, muscles और ureter. क्या है? epithelial lining होती है ये. epithelial lining. ठीक है. ये जो है ये वाला पोर्शन that is called muscles of the ureter of the bladder. ठीक है. Next is urethra. Here the urethral opening. Urethra. So ये है ब्लैडर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. यहाँ किडनी होती है, ये यूरेटर है, यूरेटर पाइप जिसको बोलते हैं हम. ठीक है. ये ट्यूब्स हैं और ये कनेक्टेड होते हैं किडनी से. किडनी से कनेक्ट होते हैं, वहाँ से फिल्ट्रेशन होके जो भी आता है वो इस यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है. ठीक है. ये एपिथेलियल सेल की लाइन, एपिथेलियल की लाइन है. ठीक है. और ये हमारी मसल्स है. बट जो ये ब्लैक ब्लैक सा जो स्कार जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कैंसर. कैंसर अराइज हुआ है हमारे ब्लैडर में. ठीक है. ये यूरेथ्रा है. क्लियर. सो इस तरीके का कुछ हमारा ब्लैडर दिखता है, which is this urethral opening or this urethral pipe is leading to the in female reproductive system. It is external part of the urinary orifice. There is 3 orifice in the female. The number 1 is urethral opening for urination, and the second one is vagina, and the third one is anus. And in males there is 2 opening. First the penile, जिसे हम semen opening या glands of penis भी कहते हैं, and the second opening is anus. So let's continue the definition. So bladder cancer is refers to the several type of malignant growth. बहुत तरह की ग्रोथ होती है malignant ट्यूमर की. ठीक है. मतलब यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इज अप्रोक्सीमेटली 90% of people have these cancer in the urinary system. All the people, in most of the people having the
colorectal cancer और द ब्लैडर कैंसर. ओके, सो यहाँ पर तीन तरह की जो कार्सिनोमा सेल है वो अराइज होती है, और उसी ही में कैंसर का जो कार्सिनोमा सेल है वो उसका डीएनए लेकर वहाँ पे अपना डीएनए रेप्लिकेट करके और फिर वो सेल्स को जनरेट करती है, और उसके बाद वो ब्लैडर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. सो वो जो तीन तरह की जो सेल है वो कुछ ये है: यूरोथेलिया कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोकार्सिनोमा हमने किडनी कैंसर में भी पढ़ा था. तो ये है यूरोथेलियल कार्सिनोमा. Okay, then squamous cell carcinoma, and the third one is adenocarcinoma. क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से ब्लैडर कैंसर डिस्क्राइब है. आई रोट द डेफिनेशन, so you may read it. Bladder cancer refers to any several type of cancer bladder cancer refer to any several type of malignant cancer growth the urinary bladder. Bladder cancer accounts for approximately 90% of the cancer urinary system. Any of this type of cancer is just as I told you earlier about the three type of cancer in the kidney. और तो मैंने आपको जैसे बताया कि तीन तरह के कैंसर होते हैं इसमें, है ना. तो सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, यूरोथेलिया कार्सिनोमा. ठीक है, जो कैंसरस सेल से ओरिजिनेट होता है. सबसे पहला होता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा. ठीक है, दूसरा क्या होता है, यूरोथेलियल कार्सिनोमा के बाद हमने क्या देखा था, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. Okay, then third one is adenocarcinoma.
कार्सिनोमा। क्लियर? यहाँ पे 3 तरह के क्या है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और यूरोथेलियल कार्सिनोमा। सो अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर करी कि क्या है ब्लैडर कैंसर, क्या है ये, क्या है सेवरल टाइप के मैलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ से होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ब्लैडर कैंसर का जो काउंट अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ पीपल इससे सफ़र करते हैं, इस तरह के कैंसर से, और ये यूरिनरी सिस्टम का एक कैंसर है। और ये 3 तरीके से डिफाइन होता है। एक होता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा, दूसरा होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और तीसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज और इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इसके कॉजेज, सबसे बड़ा कॉजेज है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, जितने भी कैंसरस चीज़ें हैं वो स्मोकिंग से अफेक्ट होती है, स्मोकिंग से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो सबसे पहला आएगा इसका सिगरेट स्मोकिंग। द नंबर 1 कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। Then second one is chemical exposure at work. Chemical exposure at work. ठीक है, डाइट, इसकी मीट और एनिमल फैट की वजह से होती है। डाइट, मीट एंड एनिमल फैट की वजह से होती है। ठीक है, फिर एज होता है इसका रिस्क फैक्टर, जो 4th है, एज। ठीक है, तो ये क्या है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर है किसके, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, केमिकल एक्सपोजर की वजह से, डाइट एंड मीट, एनिमल एज और फैट की वजह से, यूरेथ्रोथेलियल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा, ये तीनों की तीनों कार्सिनोमा इन चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं। ये इसकी इटियोलॉजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेक्स भी बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है इसका, कि मेन को 3 times मोर लाइक, मतलब 3 गुना ज़्यादा वुमेन के कंपैरेटिवली, फीमेल के कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा अफेक्ट करता है मेल्स को। ठीक है, रेस, वाइट रेसेस जो है वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड है, मतलब जो इसकी जो जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है उनको तो ये अफेक्ट नहीं करता ज़्यादा, लेकिन जो वाइट रेसेस होते हैं, है ना, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, ब्लैडर कैंसर की पर्सनल हिस्ट्री हो तो उसकी वजह से, या फिर ब्लैडर कैंसर अगर यूरेटर में हुआ है तो वहाँ पे हुआ है तो फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी होगा, या फिर किडनी में हुआ है तो फिर यूरिनरी ब्लैडर की वजह से, मतलब वहाँ पे भी होने के चांसेस होते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री, क्रॉनिक ब्लैडर इन्फ्लामेशन, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका कुछ नहीं, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें करनी पड़ेगी। ब्लैडर कैंसर जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये ब्लड कॉज करेगा, यूरिन में हेमेटूरिया की कंडीशन लाएगा। ठीक है, और ये ग्रॉस हेमेटूरिया का कारण बन सकता है। ठीक है, इसका माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया भी हो सकता है इसमें। ठीक है, पाइलोरिया भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन आ सकती है, एम्प्टी ब्लैडर नहीं होगा जल्दी, है ना, अर्ज टू वॉइड द यूरिन ऐसा लगते रहेगा, पर यूरिन एक्चुअल में आएगी नहीं, यूरिन आउटपुट होगा ही नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सर्जरी है जिसमें ब्लैडर कैंसर
की सेवरल टाइप ऑफ सर्जरी, जैसे कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ फंगी। सबसे पहली सर्जरी है इसमें ट्रांस यूरेथ्रल सर्जरी। इसमें क्या है, दूसरा या तो यूरेथ्रा ट्रांसफर कर देंगे, मतलब एक कोई जो नॉन इन्फेक्टेड है पर्सन, उसका यूरेथ्रल इसमें डाल लेंगे, यूरिनरी ब्लैडर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लूग्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। रेडिकल सिस्टेक्टॉमी कर सकते हैं, ठीक है। सेगमेंटल पैराइटल सिस्टेक्टॉमी कर सकते हैं। फिर कीमोथेरेपी तो हमको देनी है, रेडिएशन थेरेपी भी हमको देनी है, इम्यूनोथेरेपी देनी है। क्लियर? तो ये सारी थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपी इसीलिए क्योंकि इम्यूनो डिप्रेस्ड कर देगा, ये इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और उसके कारण से क्या होगा, यहाँ पे बीसीजी के वैक्सीन्स वगैरह लगने के चांसेस उस कारण से होंगे। तो यहाँ पे जो इम्यूनोथेरेपी है इस वजह से देंगे। और यहाँ पे जो बीसीजी के यहाँ पे जो बीसीजी की जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय, कैंसर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हम उसके बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा यहाँ पे, इसमें भी प्री पोस्ट बनेंगे, पर हम इसमें एक ही नर्सिंग मैनेजमेंट बनाएंगे। हमारे इरिटेटिव वर्डिंग्स जो होगी उसको मिनिमाइज करना और उसका मैनेजमेंट करना। जैसे कि प्री में हम ये देखेंगे कि किस तरीके का कैंसर है। अगर वो, जैसे मैंने आपको बताया, यूरोथेलियल कार्सिनोमाज है या स्क्वामस सेल कार्सिनोमाज है, तो उन कंडीशंस में उसके जो प्री मैनेजमेंट है हम उसको अलग तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट में लेंगे, ठीक है। और पोस्ट में हम उसका इनटेक आउटपुट चार्ट और ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे ताकि, और हाँ, ये भी इस कंडीशन में भी कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, कोल्ड को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको नर्सिंग मैनेजमेंट में देखने, एडमिनिस्टर्ड स्केड्यूल, साइड इफेक्ट, है ना, और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील देनी है जिससे ज़्यादा ब्लैडर पे प्रेशर ना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में होगी, हमारे ब्लैडर कैंसर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम ब्रेन ट्यूमर पढ़ेंगे। मैं ब्लैडर कैंसर का फिर से रिविजन करा देती हूँ एक बार। ब्लैडर कैंसर refers to any several type of malignant growth of the urinary bladder. Bladder cancer is in approximately 90% of the cancer of the urinary system. Any of 3 different cell type can become cancerous cell, ठीक है। इसका कॉज और रिस्क फैक्टर क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग, केमिकल एक्सपोजर एट वर्क, डाइट, ठीक है, ये हो सकता है, और एज हो सकती है। देन फिर हमने देखा था इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका, हेमेटोरिया की कंडीशन बन रही है, पायरियूरिया की कंडीशन बन रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, और पेन होगा यूरिनेशन वॉइड करने में, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में हमने सर्जरी देखी जो कि थी ट्रांसयूरेथ्रल सर्जरी, ठीक है। रेडिकल की साइटेक्टॉमी होगी, उसके बाद सेगमेंटल पैराइटल साइटेक्टॉमी होगी, उसके बाद कीमोथेरेपी के बारे में हमने डिस्कस किया था, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री में क्या होता है और पोस्ट में क्या होता है, मैंने आपको दोनों तरफ से बताया था कि प्री में हम पेशेंट को रेडी करेंगे और उसकी सारी चीज़ें, इनटेक आउटपुट चार्ट से लेके कितना ml ऑफ यूरिनेशन उसने किया है वॉइड, प्लस उसका कैथेटराइजेशन भी चेक करना है कि अगर आपने उसको कैथेटर लगाया है तो कैसे, क्योंकि ब्लैडर को एम्प्टी रखना इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो उसको पेन होगा, एब्डोमेन पेन भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको प्री ऑपरेटिव की केयर देनी है, ठीक है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में हमको एडमिनिस्ट्रेशन, यूरिन एनालिसिस
analgesics as well as give the administered medication such और administered schedule होने चाहिए. साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है वो देखना है, कीमोथेरेपी देना है, ठीक है, और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स देना है ताकि ब्लड पे प्रेशर ना आए. तो ये आज हमने पढ़ा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.